بآواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. توجہ ہے تو بات سنو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج کی جشن کے حوالے سے پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کے جشن کے صدقے میں پروردگار نے ہماری زندگی کو دراز کر دیا ہے. میں فقط یہی بتانے کے لیے آیا ہوں کہ جو ہمیں پورا سال تانا دیتے تھے کہ رونے کا، آج میں ان کو بتانے آیا ہوں کہ شیعوں کا ہنسنا بھی دیکھ لوں. واہ واہ کیا بات ہے. اور حمد ہے اس ذات کی جو علی کل شیء قدیر ہے، علی کل شیء محیط ہے، جو جس کا علم پوری کائنات پہ محیط ہے. وہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے قرآن میں فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، کہ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ اگر قرآن حق ہے تو ہمارے اوپر اے پروردگار پتھر نازل کر. اے حبیب ان کو کہہ دیجئے کہ ہم پتھر نازل نہیں کریں گے. کیوں؟ کہ ان کے درمیان تو رہ رہا ہے. اگر تو نہ ہوتا تو ہم پتھر کو نازل کر دیتے. یعنی پتھر رک گیا کس کی؟ میرے نبی کے وجود کے صدقے میں. اور اس کے بعد ذرا اس اپنے پروردگار کی شان کو دیکھو. اس پروردگار کی شان نرالی ہے. یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ایسی ذات ہے کہ جو حضرت نوح کو اور نوح کے بیٹے کو پہاڑ پہ ہلاک کرتا ہے اور حضرت نوح کو اور نوح کی کشتی کو اسی پہاڑ پہ نجات دیتا ہے. دوسرا جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں حضرت موسیٰ کو نبوت دینے کے لیے آگ جلاتا ہے، ابراہیم کی نبوت کو بچانے کے لیے آگ کو بجھاتا ہے. اور تیسرا اس جشن کے لیے یہ جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے نبی کی محمد مصطفیٰ نبی کی نبوت سمجھانے کے لیے پتھر کو روک دیتا ہے اور غدیر کے میدان میں امامت سمجھانے کے لیے خود پتھر مارتا ہے. صلوات پڑھ دیں آل محمد. اور یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ ون نجم اذا ہوا، پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ مجھے قسم ہے ایک ستارے ہوئے جو ایک ستارے کی جو ٹوٹ رہا تھا. یہ نہیں کہا کہ ستاروں کی قسم، نہیں، ایک ستارے کی قسم کھائی ہے پروردگار نے. ستارے اگر زیادہ ستارے ہوتے تو مسلمان پتہ نہیں ہمیں جینے کا بھی نہ چھوڑتے. لیکن ایک ستارے قسم کی کہ وہ ستارہ مخصوص ستارہ ہے، اس کا نام زہرا ہے. اس نے حضرت زہرا کی چوکھٹ کو چوما ہے. ستارے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آسمان پہ چمکتا رہے. جب تک وہ چمکتا رہتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس کی خود کوئی عزت نہیں ہے، مقام نہیں ہے ستارے کا. فقط اس کا کام ہے آسمان پہ چمکنا. لیکن جب تک وہ چمکتا رہا، آسمان پر اپنی بلندیوں پر رہا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. جب ظاہری طور پہ اس نے اپنی بلندی کو چھوڑا اور فاطمہ زہرا کے دروازے پہ آیا، پروردگار نے اس کو اتنی عزت دی اور مقام دیا، اتنی زندگی عطا فرما دی. یہی کہنا چاہتے فقط اس کا اترنا ستارے کا کمال نہیں تھا، بلکہ اس کا صحیح گھرانے پہ اترنا اس کا کمال تھا. جب وہ
सोच समझ के सितारा सही घिराने पे नाजिल हुआ और आया, हजरत ज़हरा के दरवाजे पे झुका, परवरदिगार ने उसको इतनी इज्जत दी। जब तक कुरान बाकी है इस सितारे का जिक्र बाकी है। और वो परवरदिगार, क्योंकि सितारे का काम क्या होता है, ये सितारे तो टूटते रहते हैं। अगर ये सही घराने के आले मोहम्मद के दरवाजे पे ना आए तो इनकी जिंदगी नहीं होती, जैसे वो शराब में गिरते हैं और खत्म हो जाते हैं। सितारों का काम यही होता है, वो चलते रहते हैं, भागते रहते हैं। लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि जो सितारा आले मोहम्मद के दरवाजे पे आ गया तो उसको जिंदगी इतनी मिल गई कि वो कयामत तक बाकी है। और जो इससे नतीजा ये हुआ कि जो आले मोहम्मद के घर से दूर हुआ वो मर गया। अब उसको इख्तियारों में, अखबारों में नाम जितना भी लिखते रहे वो रोशन नहीं कर सकते, वो मर गया। लेकिन इतना कहना चाहता हूँ, जो आले मोहम्मद के दरवाजे पे बाअदब तरीके से आया है, कोई एक रिवायत भी नहीं दिखा सकता कि वो मर गया हो। यही तो कहना चाहता हूँ कि अबू ज़र मरा नहीं है, अभी तक जिंदा है, इसलिए कि आले मोहम्मद के दरवाजे पे आया है। मालिक अश्तर जिंदा है, मरा नहीं। जनाब सलेमान जिंदा है, मरा नहीं। हबीब इब्न मज़ार जिंदा है, मरा नहीं। मुस्लिम इब्न मुअज्जा जिंदा है, मरा नहीं। शहीद जिंदा है, मरा नहीं। लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि जनाब हुर अलैहिस्सलाम को जरा देखिए, जब तक अशूरा की रात तक वो मर गया था उसका नाम भी नहीं था। जब सुबह हुई 10 मुहर्रम की, आले मोहम्मद के दरवाजे पे, हजरत फातिमा ज़हरा के बेटे के दरवाजे पे जब बाअदब तरीके से आया, इतनी इज्जत मिली। पहले मुर्दा था, आज हर बंदा उसको हुर अलैहिस्सलाम कह रहा है। एक सलवात पढ़ दें आले मोहम्मद। हवा, ये पैगंबर बोलता नहीं है, इन रूहा, और ये पैगंबर सिवाय वही के नहीं बोलता। इसका मकसद क्या है? ऐसा नहीं है कि कोई पूरे कुरान में मुझे दिखा दे कि ऐसा नहीं है कि इस तरह बोले तो वो मोहम्मद होगा और इस तरह बोलेगा तो वो नबी होगा, ऐसा नहीं है। जहाँ भी हो वो वही के मुताबिक गुफ्तगू करता है, वो वही के मुताबिक गुफ्तगू। अब जिसके फैसले, जिसके बारे में वो फैसला दे वो वही के मुताबिक होता है। जिसके लिए कुछ कह दे वो हुक्म खुदा के मुताबिक होता है। जिसके लिए जो कुछ कह दे, जो कुछ कह दे उसके लिए क्या होता है, हुक्म खुदा के मुताबिक होता है। यही तो कहना चाहता हूँ कि मेरे नबी ने ये कहा, बस यही कहना चाहता हूँ कि बस जब भी बोलता है वही के मुताबिक बोलता है। किसी के लिए कहता हुआ नजर आता है कि या अली तू जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाला है, तो हुक्म खुदा के साथ। और किसी के लिए कहता है कि या अली तेरे साथ मोहब्बत वही करेगा जो हलाल ज़्यादा होगा और तुझसे दुश्मनी वही रखेगा जो हराम ज़्यादा होगा, हुक्म खुदा के साथ। और किसी के लिए कहता है कि जन्नत और जन्नत के सरदार हैं हसन और हुसैन, तो वही ये भी हुक्म खुदा के साथ। किसी के लिए कहता है अल फातिमा तो बजा तो बिन्नी, ये फातिमा के बारे में कहता है हुक्म खुदा के साथ। किसी बीवी के एहतराम में खड़ा हो जाता है हुक्म खुदा के साथ। किसी बीवी के हाथ चूमता है तो हुक्म खुदा के साथ। उनके हाथों को पकड़कर अपने मकाम पे बिठाता है तो हुक्म खुदा के साथ। किसी के लिए नाका बन जाता है तो हुक्म खुदा के साथ। किसी को अपने कंधों पे उठा देता है और उठाता है तो हुक्म खुदा के साथ। यही तो कहना चाहता हूँ कि वो पैगंबर जो हर वक्त जब भी काम करता है बोलता है, जिसके लिए कहता है तो हुक्म खुदा के साथ। यही कहना चाहता हूँ कि किसी बीबी की कब्र में लेट जाता है तो हुक्म खुदा के साथ। किसी को अपना पहरान देकर उसे कफन देता है तो हुक्म खुदा के साथ। किसी के लिए तलकीन पड़ता है बीबी के लिए तो हुक्म खुदा के साथ। अपने चचा से मदद मांगता है तो अबू तालिब से हुक्म खुदा के साथ। यही तो कहना चाहता हूँ, किसी को बेटा कहता है तो हुक्म खुदा के साथ, किसी को बाप कहता है तो हुक्म खुदा के साथ। बस यही कहना, आखिरी जुमले यही इस जुमले से कहना चाहता हूँ, इस जश्न में यही पैगाम देना चाहता हूँ। वही के बगैर वो बोलता भी नहीं है, जिसके लिए बोलता है जो कुछ बोलता है वही के मुताबिक होता है, हुक्म खुदा के मुताबिक होता है। यही वजह है कि किसी को अपने करीब बुला लेता है तो हुक्म खुदा के साथ, किसी को अपने पहलू में बिठा देता है तो हुक्म खुदा के साथ, किसी को अपने पहलू से उठा देता है तो हुक्म खुदा के साथ। एक सलवात पढ़ने आले मोहम्मद के साथ। वही परवरदिगार शत्म वल्लाहु अल्लज़ी अरसला रियाह फतसीरु सहाबन फसुकनाहु इला बलदिन मैदिन फअहयैना बिही अर्द बाद मौतिहा कज़ालिका नशूर। परवरदिगार इरशाद फरमा रहे कि मैं वो अल्लाह हूँ, पहले हवाओं को भेजता हूँ और हवाएं क्या करती हैं, आकर वो बादलों की खुशखबरी देती हैं और बादल क्या करते हैं, आके वो बारिश बरसाते हैं और मैं उस बारिश के कतरों से मैं मुर्दा जमीन को जिंदा कर देता हूँ। मैं वो अल्लाह हूँ
जो ऐसा काम मुर्दा जमीन को एक कतरे से मैं जिंदा कर सकता हूँ, क्या मिट्टी के बने हुए इंसान को मिट्टी से पैदा नहीं कर सकता, दोबारा नहीं उठा सकता। लेकिन दूसरी आयत में इरशाद फरमाया कि तबारकल्लज़ी नज़ल फुरकान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। परवरदिगार ने इरशाद फरमाया कि बाबरकत है वो ज़ात जिसने अपने बंदे पे एक फुरकान नाजिल की है, जो हक और बातिल के दरमियान फैसला करती है। यानी अपने परवरदिगार से मैं वो हूँ, बख्तों वाला हूँ। तीसरी आयत में फरमाया हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलु अला अब्दी आयाति बय्यिनातिन युख़रिजुकुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। वो है अल्लाह जो अपने बंदे पे किताब नाजिल करता है और वो बंदा तुम्हें नूर से लेकर और अंधारे से निकाल कर नूर की तरफ ले जाता है। और फिर इरशाद फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा। परवरदिगार की सारियां तारीफ हैं उस अल्लाह की हैं, उस परवरदिगार के लिए हैं कि जो अपने बंदे पे किताब नाजिल करता है, ऐसी किताब नाजिल करता है जिसमें टेढ़ापन नहीं है, जिसमें कजी नहीं है। बस यही तो कहना चाहता हूँ कि इस आयत की रोशनी में परवरदिगार ने ये इरशाद फरमा दिया कि इस आयत में कुरान में टेढ़ापन नहीं है। बस वारिस से कुरान वो नहीं हो सकता जो पहले दिन मिंबर पे कह रहा था अगर मैं टेढ़ा हो जाऊं तो मुझे सीधा कर देना। क्या बात, क्या बात। और इसके बाद इरशाद फरमाना चाहता हूँ सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। एक दिन अपने हबीब को मस्जिद हराम में देखा तो खुदा ने कहा कि हम्द है उस अल्लाह की, पाक व मुनज़्ज़ह है वो पाक, वो अल्लाह जो बगैर अपने वो मुनज़्ज़ह है, पाक है हर ऐब से, जो अपने बंदे को मिराज पे ले गया। मैं अर्ज करूंगा ऐ परवरदिगार, मेरा सवाल ये है कि अपने हबीब की तारीफ क्यों नहीं करता, अपनी तारीफ क्यों कर रहा है? यही तो वजह है, बताना यही चाहता है परवरदिगार। ऐ बंदे खुदा पहले अपनी तारीफ कर रहा हूँ इसलिए कि अगर मेरे नबी में कोई शक करे, कोई गलती निकाले तो उसका ईमान पहले मुझसे खत्म हो जाए। सलावत पढ़ने आले मोहम्मद की वही परवरदिगार शाह होते इन कुल्लो फरमाते हैं इन कुल्लो मन फिस समावाति वल अर्द इल्ला आतिर रहमान अब्दा। जो चीज़ ज़मीन में है, आसमान में है, वो खुदा की अब्द है, वो खुदा की बंदगी कर रही है। यानी इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि सूरज आबिद है, और इसका मकसद यह है कि चांद आबिद है। इसका मकसद यह है कि चांद आबिद, सूरज आबिद है, सियारे आबिद हैं, सितारे आबिद हैं, आसमान आबिद है, लौह कलम भी आबिद हैं, ये दरख्त भी आबिद हैं, ये फरिश्ते भी आबिद हैं, ये इंसान भी आबिद हैं, ये हवा भी आबिद है, ये चरिंद परिंद भी आबिद हैं। लेकिन परवरदिगार वही इरशाद फरमाता है कुल इन काना लिर्रहमान वलदुन फअना अव्वलुल आबिदीन। आए मेरे मुस्तफ़ा इन लोगों को कह दीजिए अगर कोई खुदा का बेटा होता तो वो हिस्सा ना होता कि तुम होते। क्यों? इसलिए कि वो सारे आबिद हैं, तू इनका सबसे पहला आबिद है, तो अव्वलुल आबिदीन है। इसका नतीजा यह निकला कि आसमान बाद में बना, मेरा नबी पहले बना। इसका नतीजा यह निकला कि कलम बाद में बनी, मेरा नबी पहले बना। कलम बाद में बनी, मेरा नबी पहले बना। फरिश्ते बाद में बने, मेरा नबी पहले बना। आसमान बाद में बना, मेरा नबी पहले बने। यही तो कहना चाहता हूँ कायनात की हर शय बाद में बनी, मेरा नबी पहले बना। यही कहना चाहता हूँ कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। परवरदिगार इरशाद फरमाता है हमने मौत को खल्क किया और हयात को खल्क किया। मौत है मखलूक, मेरा नबी है अव्वल मखलूक। जिंदगी है मौत और जिंदगी है मखलूक, मेरा नबी है अव्वल मखलूक। यही तो कहना चाहता हूँ जो मौत से भी पहले बना हो, जो मौत से भी पहले बना हो, जिंदगी से पहले बना हो, ना वो तुम्हारी तरह जिएगा ना तुम्हारी तरह मरेगा। एक सलात पढ़ दे आले मोहम्मद की जात पर। और लोग कहते हैं कि एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ कि मेरे नबी को हिस्यान हो गया था। आज इस जश्न में यही पैगाम देना चाहता हूँ कुरान की रोशनी में। एक सलवात पढ़ दें आले मोहम्मद की जात। परवरदिगार ने इरशाद फरमाया कि यौम नबअसु फी कुल्लि उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम व जीना बिका शहीदन अला हाउलाई व नज़्ज़लना अलैका किताबन तिबयान लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। आए हबीब इनको कह दीजिए कि हम क़यामत के दिन हर नबी को अपनी उम्मत पे गवाह बना के लाएंगे। लेकिन आए हबीब तेरी ये शान नहीं है कि आपको अपनी उम्मत पे गवाह बना के लाएंगे, नहीं, आपको उन सारे अंबिया पे गवाह बना के लाएंगे।
ये है अजमत। यही तो कहना चाहता हूँ कि मेरे नबी की अजमत यह है कि हजरत मूसा को कहा था आपको तौरात चाहिए, किताब चाहिए तो इतने दिन पहाड़ पे आना पड़ेगा, और हजरत दाऊद के बारे में फरमाया था आपको किताब चाहिए, हजरत ईसा को कहा कि वहाँ पहाड़ी पे आ जाओ। लेकिन जब मेरे नबी की नौबत आई, कहा कि आए मुस्तफ़ा आपकी शान ये नहीं है कि आप फलां पहाड़ी पे आए तो आपको कुरान देंगे, नहीं, आप जहाँ भी होंगे हमारी आयत आएगी। यही तो कहना चाहता हूँ कि मेरा नबी मिंबर पे तो आयत मिंबर पे नाज़िल हुई, मेरा नबी घर में था तो आयत घर में, मेरा नबी मस्जिद में आयत मस्जिद में, मेरा नबी जहाँ भी जाते थे आयत वहाँ आ जाती, मेरा नबी पहाड़ में आयत पहाड़ में, मेरा नबी गार में आयत गार में, मेरा नबी मैदान में आयत मैदान में, मेरा नबी नाका पे आयत नाका पे, जहाँ भी जाते थे वहाँ वहाँ आयत आ जाती थी। लेकिन जब एक दिन ऐसा हुआ कि परवरदिगार ने, वही परवरदिगार जो पहले कह चुका था कि जहाँ भी आप होंगे वहाँ आयत आएगी, उसने अपना कानून तब्दील किया, तोड़ दिया। आए मुस्तफ़ा हम अपना कानून तब्दील कर रहे हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा कभी जहाँ आप होंगे वहाँ आयत आएगी, नहीं, क्योंकि आज आयत ततहीर आ रही है, जहाँ फातिमा ज़हरा होगी वहाँ आयत आएगी। सलवात पढ़ने आले मोहम्मद की वो परवरदिगार फरमाते कि हमने आपके ऊपर किताब को नाज़िल किया। ऐ परवरदिगार उस किताब को कब नाज़िल किया? ना कि शाह रमज़ान लज़ी उनज़िल फ़ीहिल कुरान, हमने कुरान को रमज़ान के महीने में नाज़िल किया। ऐ परवरदिगार दिन को नाज़िल किया या रात को? मैं कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, हमने उस कुरान को एक मुबारक रात में नाज़िल किया। ऐ मेरे अल्लाह उस रात का नाम क्या है? इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने उस कुरान को लैलतुल क़द्र की रात में नाज़िल किया, यानी उसकी रात का नाम क्या है? लैलतुल क़द्र है। पहला सवाल ये था, इतना तो समझ आ गया परवरदिगार कुरान को मेरे नबी के ऊपर नाज़िल किया, कब नाज़िल किया? रमज़ान के महीने में। कब? उस रात का नाम क्या? दिन को नाज़िल किया या रात को? यानी रात को नाज़िल किया, उस रात का नाम लैलतुल क़द्र। ऐ परवरदिगार तू तो जिस्म नहीं रखता, इस कुरान को लेके कौन आया है? किसके जरिए? माया के परवरदिगार ने इरशाद फरमाया नज़ल बिही रूहुल अमीन, इसको जिब्राइल लेके आया इस कुरान को। ऐ परवरदिगार मेरे नबी के हाथों पे कुरान को नाज़िल किया, कानों पे नाज़िल किया, कहाँ नाज़िल किया? आवाज़ आई, परवरदिगार ने इरशाद फरमाया कि नज़ल बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, हमने रसूल के दिल पे कुरान को नाज़िल किया। परवरदिगार इतना समझ में आ गया, अब जरा बताइए कि तेरे कुरान की ताकत क्या है? आवाज़ आई, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान ला रअयतहु खाशियन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, अगर हम इस पहाड़ को, अगर इस कुरान को पहाड़ पे नाज़िल कर देते तो ये पहाड़ ऊपर उठ जाता। ये पहाड़ क्या हैं? पहाड़ साबित कदमी की अलामत हैं, ये पहाड़ हैं साबित कदमी की अलामत। यदि ये छोटे मोटे ज़लज़ले से परवाह नहीं लेते, इतने बड़े टीले हैं, लेकिन परवरदिगार वा इलल जिबाल कैफ़ नुसिबत, क्या आप देखते नहीं इन पहाड़ों को हमने कैसे ज़मीन में गाड़ दिया? इतना तक अगर मेरे साथ है तो एक और आयत भी सुने, इन्ना अरज़ना अमानता अला समावाति वल अर्ज़ वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा व अशफक़ना मिनहा व हमल इंसानु इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। परवरदिगार कहते कि हमने अपनी अमानत को ज़मीन के सामने पेश किया, उसने इनकार किया उठाने से। हमने पहाड़ों के सामने पेश किया, उसने इनकार किया। हमने उस ज़मीन को पहाड़ों और ज़मीन के सामने पेश किया, आसमान के सामने पेश किया, उन्हें इनकार किया। क्यों? ये कहकर परवरदिगार इसका वज़न ज़्यादा है, हम नहीं। उलमा ने ये लिखा है कि इस अमानत से क्या था मुराद? कुरान था। जैसे इन्होंने इनकार किया, सामने मेरे पैगंबर की ज़ात खड़ी थी, नूर खड़ा था, उसने कुरान को उठा लिया। बस यही तो कहना चाहता हूँ कि जिसका दिल यही कहना चाहता हूँ, जो आसमानों से ज़्यादा मजबूत हो, जिसका दिल ज़मीनों से ज़्यादा मजबूत हो, जिसका दिल पहाड़ों से ज़्यादा मजबूत हो, उसका अक्ल इतना ज़ईफ़ नहीं हो सकता कि छोटे मोटे बुखार में हिज़ियान हो जाए। पहला सवाल ये है। और दूसरा ये है कि जो लोग कहते हैं कि उनको लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, उनके लिए ये जुमला पढ़ रहा हूँ, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। परवरदिगार ने साथ मैं कि आए हबीब पहली वही बोले अपने रब के नाम से पढ़ो, हमारा रब बहुत करीम है। और दूसरा वो रब है कि जिसने तुम्हें हर इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। और तीसरा इक़रा व रब्बुकल अकरम, आए हबीब अपने रब के नाम से पढ़ो, तुम्हारा रब बहुत करीम है। और यही तो कहना चाहता हूँ कि मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरे सामने बच्चे बैठे हैं, सारे बैठे हैं, अगर किसी बच्चे को मैं कहूँ जाए पानी का एक लिवान लेके आ जाएं,
पानी का एक लीवान लेके आ जाएं, क्या मैंने गलत मुतालबा किया है? सारे कहेंगे कि ठीक किया है। हर आकल कहेगा, वो बच्चा जाएगा पानी का लीवान लेके आ जाएगा। अगर उसी बच्चे कहूँ कि यहाँ से उड़ जाएं, तो सारे मेरी गिरफ्तार में आकर कहेंगे कि आपने वो काम कहा क्यों है जो वो कर नहीं सकता। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने परवरदिगार आज के जश्न में कहना चाहता हूँ, अपने परवरदिगार से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आए मेरे परवरदिगार, तू कहता है कि हबीब अपने रब के नाम से पढ़ो, 2 मरतबा पढ़ने का कहा है, अपने रब के नाम से पढ़ो, अपने रब के नाम से पढ़ो। तुम्हारा रब करीम है, जबकि तुम्हारे नबी को लिखना पढ़ना आता नहीं है। यही तो कहना चाहता हूँ। कुरान कहता है नबी को पढ़ना भी आता, लिखना भी आता। आज का मुसलमान कहता है उसे पढ़ना भी नहीं आता था, लिखना भी नहीं आता। जरा आप बताइए जश्न सुनने वाले कि मुझे बताइए कुरान की मानो या मुसलमान की मानो? और मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर उनको लिखना नहीं आता था, अगर उसको लिखना नहीं आता था, मान लेता हूँ, तो जब वो कलम मांगे तो दे देना, जब वो कलम मांगे तो दे देना। क्यों नहीं देते कलम? इसलिए दिल में डरे हुए हैं, अगर दे देंगे तो लिख के दे देगा। जबान पे कह रहे हैं उसे लिखना नहीं आता। क्यों न कहूँ आज के जश्न में जहाँ दिल और जबान का इख्तिलाफ हो जाए वहाँ इस्लाम नहीं होता, मुनाफिकत होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दोनों आग बुलंद करके नारे हैदरी, आवाज़ बुलंद सलावत। क्या बयान करूं? वल्लाहु अखरजकुम मिन बतून उम्महातिकुम ला तअलमून शय'अन व जअल लकुम अस्समा वल अबसार वल अफइदता लअल्लकुम तशकुरून। परवरदिगार ने कहा, हम जो भी दुनिया में इंसान आता है इस हालत से निकालते हैं, माँ की शिकम में जाहिल होता है, कोई नहीं जानता, यानी अनपढ़ होता है। उसके हालत में क्या होता है? कोई माँ के पेट से मुत्तहिद बन के नहीं आता, कोई माँ के पेट से आलिम बन के नहीं आता, कोई माँ के पेट से टीचर बन के नहीं आता। जो भी आता है जाहिल आता है। अब इस बात को जहन में रखना। तो एक वाकया आपको हदिया करना चाहता हूँ, वो ये है कि जब मेरी हजरत अली की माँ के पेट में मौला अली का नूर आया, जब आया तो जैसे रसूल करीम आते थे, रसूल करीम आते उसके एहतराम में खड़ी हो जाती थी। जैसे वो खड़ी होती तो अरब की औरतों को ये बर्दाश्त ना हुआ, कहने लगी कि आए फातिमा, वो तुम्हारा बेटा है, आप उनकी माँ हैं, वो आपको बेटा कहता है, आप उसको माँ कहती हैं। लेकिन मुझे ये है, मेरा सवाल ये है कि आप उसके एहतराम में माँ की शान के खिलाफ है कि वो बेटे के एहतराम में खड़ी हो जाए। तवज्जो है आप सारों की? जुमला हदिया करना चाहता हूँ कि एहतराम में खड़ी हो जाए। बीबी ने क्या जवाब दिया? कहा, दिल तो मेरा भी कहता है, दिल तो मेरा भी कहता है इसका एहतराम न करूं, क्या करूं? जब ये आता है मुझे पेट वाला बैठने नहीं देता, इसके एहतराम के लिए खड़ा कर देता है। अगर जुमला बर्दाश्त कर सकते तो कर लेना, यही कहना चाहता हूं। तो माँ के पेट से बाहर आकर भी जाहिल होते हो, वो माँ के पेट में रहकर आलमुल गायब होता है। एक सलावत पढ़ दें आले मोहम्मद के साथ। समझो, हर इंसान को परवरदिगार ने फरमाया कि खलक़ल इंसान मिन अलक़, हमने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। इसका मतलब क्या? जमा हुआ खून कमजोर होता है, ज़ईफ होता है, यानी जाहिल होता है, उसमें ताकत नहीं होती, इल्म नहीं होता। ताकत भी आहिस्ता आहिस्ता आती है और इल्म भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है इंसान का। लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि ये परवरदिगार ने जो इरशाद फरमाया कि जमे हुए खून से पैदा किया, इसका मतलब क्या है कि इंसान 2 किस्म के हैं। जो चले थे इंसान जहालत से, जो चले थे कमजोरी से, आज वो इतने बड़े आलिम हुए, इतने बड़े ताकतवर हुए कि आसमान तक पहुंच चुके हैं। तवज्जो है आपकी? इतने बड़े ताकतवर हुए कि वो आसमान तक पहुंच चुके हैं। वो इतने बड़े ताकतवर हुए कि उन्होंने समंदर के सीनों को चीर कर अपनी कश्तियों को उन्होंने चला दिया। इतने बड़े ताकतवर हुए कि वो चांद तक पहुंच चुके हैं, उन्होंने जमाने की तनाबों को खींच लिया है। इतने बड़े आलिम हुए कि उन्होंने एक जर्रे से एटम बम बना लिया। जो चले थे जिहालत से, जिनके पास इल्म नहीं था, जब माँ के पेट से आए थे जाहिल थे, लेकिन इतने बड़े आलिम हुए, उन्होंने पुराने जमाने में जो सालों महीनों में जो सफर होता था, सताए करते थे, आज उन्होंने एक इल्म की ताकत से जहाज बना दिया, लम्हों में सफर हो रहा है। इतने बड़े आलिम हुए, लेकिन क्यों न कहूँ जो चले थे जिहालत से वो इतने बड़े आलिम, जो चले से कमजोरी से वो इतने बड़े ताकतवर हुए। मैं ये अपने सुनने वालों को कहना चाहता हूँ, वो ये है कि जो चला हो इल्म से और जो चला हो ताकत से, वो कितना बड़ा आलिम होगा और कितना बड़ा ताकतवर होगा। अगर उसके पास इल्म ना होता, रसूल के हाथों पे कुरान की तिलावत न करते, अगर उनके पास ताकत ना होती तो अस्तर को न चीरते।
आले मोहम्मद की ज़ात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले आखिरी दो आयतें आपको हदिया करना चाहता हूँ और दुआ देना चाहता हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो ये हैं कि सयक़ूलु सुफ़ाहु मिनन नास मा वल्लाहु अन क़िबलतिहिम कानू अलैना वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब यहदी मन यशाअ इला सिरातिल मुस्तक़ीम। आए हबीब, कुछ बेवकूफ़ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि आपने किबले से मुसलमानों ने क्यों रुख को मोड़ा है, जबकि परवरदिगार वो है। उनको कह दीजिए कि कुलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, मशरक भी अल्लाह का है, मग़रिब भी अल्लाह का है। माशाअल्लाह। यशाअ इला सिरातिल मुस्तक़ीम। हम वो हैं कि जिसे चाहे हिदायत दें और जिसे चाहे हिदायत देना हमारा काम है, और हम जिसे चाहे हिदायत दे देते हैं सिरातिल मुस्तक़ीम। मा जअलना की बतलती कुंता अलैहा, परवरदिगार ने इरशाद फरमाया कि हमने जो किबला था हमने उसको तब्दील कर दिया आपके कहने। अगला जुमला सुनना, इस आयत कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा क़ाल वल्ली जन्नतु तरज़ाहा। हबीब, आपके रुख के अनवर को जो आसमान की तरफ आप उठाते हैं हम उसको देख रहे हैं, और हमने आपके किबले को हमने तब्दील कर दिया। तरज़ाहा, आप राज़ी हो जाए। बस यही जुमला है मेरा कि हबीब आप राज़ी हो जाए। बस यही कहना चाहता हूँ कि इब्राहीम ये चाहता है, इब्राहीम ये चाहता है कि मेरा खुदा राज़ी हो जाए। हजरत नूह की तमन्ना ये है कि मेरा खुदा राज़ी हो जाए। हजरत ईसा की तमन्ना ये है कि मेरा खुदा राज़ी हो जाए। हजरत मूसा की तमन्ना ये है कि मेरा खुदा राज़ी हो जाए। हजरत इब्राहीम की तमन्ना ये है कि मेरा खुदा राज़ी हो जाए। हजरत नूह की तमन्ना ये है कि मेरा खुदा राज़ी हो जाए। हजरत इब्राहीम के हजरत यूसुफ की यही ख्वाहिश है कि मेरा खुदा राज़ी हो जाए। हजरत याकूब की यही ख्वाहिश है कि मेरा खुदा राज़ी हो जाए। हजरत इस्माइल की यही ख्वाहिश है कि मेरा खुदा राज़ी हो जाए। आपकी ख्वाहिश यही है कि हमारा खुदा हम पे राज़ी हो जाए। फरिश्तों की ख्वाहिश यही है कि हमारा खुदा हम पे राज़ी हो जाए। यानी हर चीज़ जो शऊर रखती है उसकी ख्वाहिश ये है कि तमन्ना ये है कि हमारा खुदा हम पे राज़ी हो जाए। और यही तो कहना चाहता हूँ कि मेरे अल्लाह की ख्वाहिश ये है, हर नबी की 1,24,000 पैगम्बरों की ख्वाहिश यही है कि अपना खुदा उन पे राज़ी हो जाए। और मेरे नबी की और मेरे अल्लाह की ख्वाहिश ये है कि मेरा मुस्तफ़ा मुझसे राज़ी हो जाए। मुस्तफ़ा की ख्वाहिश ये है कि मेरा अली मुझसे राज़ी हो जाए। परवरदिगार ने इल्ला इब्लीस इस्तकबर व कान मिनल काफिरीन। बस ऐसे लोग हैं कि जो तकब्बुर करते हैं, उन्होंने ऐसा तकब्बुर किया कि उनके लिए परवरदिगार ने इल्ला इब्लीस इस्तकबर व कान मिनल काफिरीन। इब्लीस ने तकब्बुर किया, व कान मिनल काफिरीन, वो था भी पुराना काफिर। जब वो पुराना काफिर था, ऐ परवरदिगार, काना का माना होने था, अस्बा का मानी भी हो गया, वो था पुराना काफिर था। तर्जुमा आसान ये है कि वो पुराना काफिर। आए परवरदिगार, जब शैतान पुराना काफिर था तो उसको मासूम की महफिल में क्यों बिठाया? यही तो बताना चाहता हूँ कि वही परवरदिगार ने इरशाद फरमाया कि उसको इसलिए हमने मासूम की महफिल में बिठाया कि वो अगर दूर रहता तो उसका कुफ्र न खुलता। बाज़-ओ-कात कुफ्र खोलने के लिए और कुफ्र को खोलने के लिए मासूम के पहलू में बिठाया जाता है। इसलिए बैठा रहेगा, हमारे मासूम का चलन को देखेगा, हमारे मासूम के अखलाक को देखेगा, उनके उठने को, उनकी बात को, उनकी तस्बीह को देखेगा। एक दिन हम उसे हुक्म देंगे, हमारे हुक्म की नाफरमानी करेगा, हम उसको काफिर बना देंगे। लेकिन वही शैतान कह रहा है, ऐ परवरदिगार, ऐसी दुआ आपने जिंदगी में सुनी भी नहीं होगी, ऐ परवरदिगार मुझे मोहलत दे दे, काफिर तो बना दिया, मैं जाकर तुम्हारे बंदे बना दूंगा। ऐसी आपने कभी दुआ सुनी? लेकिन इतना कहना चाहता हूँ, उसने अगर कोई और होता खुदा की जगह पर, वो खुदा को जरूर धोखा देता। कहता मुझे, मिसाल तो सादी ज़बान में, मुझे इजाज़त दे दे, मोहलत दे दे, मैं जाके एक पेश नमाज बन जाऊँगा या मौलवी बन जाऊँगा बहुत बड़ा, जाके लोगों के अकीदे ठीक करूँगा, मदरसे खोलूँगा। ये कहता नहीं कहा। शैतान ने कहा कि मुझे इजाज़त दे दे कि मैं जाकर तुम्हारे बंदों को गुमराह करूँगा। क्यों? इसलिए कि वो जानता था बाहर निकल कर मैं काफिर तो हो सकता हूँ, मरदूद तो हो सकता हूँ, तकिया करके मुनाफिक नहीं बनना चाहता। और दूसरा, वो बैठा जैसे अब ये खुदा का मंसूबा था कि वो साथ बैठे ताकि उसका कुफ्र खुले। और शैतान से पूछे आप क्यों बैठे रहे, आपका क्या काम था? वो उलमा ने लिखा इसलिए बैठा था, इसलिए वो बैठा रहा कि उसने सुन रखा था कि खुदा एक खलीफा बनाने वाला है। उसके दिल में खिलाफत की तमन्ना आई तो जाके मासूम के पहलू में बैठ गया।
अब तस्बीह भी कर रहा है, जिक्र भी कर रहा है, सजदे भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे वो फरिश्ते हैं, ये भी उसी तरह है, इनमें फर्क महसूस नहीं हो रहा। लेकिन बैठा रहा, बैठा रहा, बैठा रहा। जब आदम की खिलाफत का ऐलान हुआ, आपने देखा कि उनका चेहरा बिगड़ा या नहीं, यानी बिगड़ गया। यही तो कहना चाहता हूँ, रसूल के पहलू में बैठने वालों लोगों को न देखना, गदीर के ऐलान के बाद चेहरों को पढ़ देना, कितनों के बिगड़े हैं, कितनों के खुश हुए हैं। लगातार सलवात पढ़ने वाले, एक और भी सलवात पढ़ने वाले, सब्बिहुल्लाह मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। परवरदिगार फरमाता है कि जो भी ज़मीन आसमान के दरमियान जो चीज़ें हैं वो खुदा की तस्बीह कर रही हैं। इसका मकसद क्या है कि तस्बीह वो कर सकती है कि मुर्दे को हाल में शऊर रखते हैं, यानी चरिंद परिंद ये शऊर रखते हैं तो खुदा की तस्बीह कर रहे हैं। और दूसरी आयत की सुनें, वाहिदल वहूश व हुश्रा। परवरदिगार ने चाहते हैं कि हम क़यामत के दिन वाशी जानों को भी उठाएंगे। इसका मकसद क्या है कि वो शऊर रखते हैं तो उनको उठाया जाएगा। और दूसरी आयत सुनें, जब वो ऐसे हैं वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि वला ताइरिन। परवरदिगार ने इरशाद फरमाया कि जो भी ज़मीन और आसमान के दरमियान में हैं वो सारे के सारे जो हैं क्या हैं, परिंदे हैं, जो भी हैं वो सब कुछ जितने भी हैं वो इल्ला वो एक उम्मत है। ज़रा इसी आखिरी जुमले पे तवज्जो करना और मैं आपकी ज़हमत को तमाम कर रहा हूँ। एक सवाल पढ़ दें वो क्या है, जो भी ज़मीन और आसमान के दरमियान रह रहे इल्ला उममुन अमसालुकुम। किबला आपके नजर कर रहा हूँ, यही कहना चाहता हूँ कि वो जो भी ज़मीन और आसमान के दरमियान जितने भी चरिंद हैं, परिंद हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, उम्मत हैं तुम्हारी तरह। अमसालुकुम तुम्हारी तरह हैं उम्मत, यानी यही कहना चाहता हूँ जब वो उम्मत हैं, इसका मकसद क्या है, दरख्त भी उम्मत है, फरिश्ते भी उम्मत हैं, इसका मकसद है चरिंद भी उम्मत हैं, ये कीड़े मकोड़े भी एक उम्मत हैं, पहाड़ भी उम्मत हैं, ये ज़मीन भी उम्मत है, ये गिरोह हैं। जब ये परिंदे सांप जो भी हैं ये सब के सब क्या हैं, एक उम्मत हैं। तो वही परवरदिगार इरशाद फरमाता है, इसी जरा आयत को सुनना, कितनी खूबसूरत आयत परवरदिगार व इन मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर। परवरदिगार इरशाद फरमाता है कि कोई ऐसी उम्मत नहीं है जहान जिसमें हमने अपने डराने वाला न भेजा हो। अब यह जो भी हो, लेकिन अपने परवरदिगार ने इरशाद फरमाया कि हर उम्मत में हमारे डराने वाला एक नबी जरूर आया है। वही अपना परवरदिगार कुरान में फरमाता है, तबारकल्लज़ी नज़ल फुरक़ान अला अब्दिही लियकुना लिल आलमीन नज़ीरा। ऐ बाबरकत है वो ज़ात जिसने अपने मुस्तफ़ा को आलमीन के लिए डराने वाले बनाया। अब मेरा नबी है डराने वाला पूरी आलमीन को। बस यही तो कहना चाहता हूँ, मेरा नबी है शेर को भी डराने वाला, मेरा नबी है चीतों को भी डराने वाला, मेरा नबी है हैवानों को डराने वाला, मेरा नबी है परिंदों को डराने वाला, मेरा नबी है हैवानों को डराने वाला। अगर आपकी तवज्जो हो तो आखिरी जुमला आपको हदिया कर रहा हूँ, वो मेरा ये है कि मेरा नबी है सांप को डराने वाला। बस मोहम्मद मुस्तफ़ा क्या है, सांप को डराने वाला। बस इसका नतीजा ये मिला कि मिंबर पे वो नहीं बैठेगा रसूल के जो सांप को देख के डर गया हो। सलवात पढ़ने वाले मोहम्मद